हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइशोजू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे पजल्स ग्रिड्स, ये जो टॉपिक है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंट टेस्ट का, और ये फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये नंबर्स इन स्क्वायर्स और वी कैन से नंबर्स इन सर्कल्स। तो वहाँ पे सर्कल्स और स्क्वायर्स में कुछ नंबरिंग रहता है, उसमें कुछ रिलेशंस रहता है, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा और कुछ एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पजल्स मतलब क्या है एग्जैक्टली, तो इसमें कुछ शेप्स यूज हुए हैं। ओके, तो शेप्स लाइक समथिंग स्क्वायर होगा, या तो रेक्टेंगल होगा, ट्राइंगल होगा, सर्कल्स। ओके, और वी कैन से इन ग्रिड्स, वर्टिकल और इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड टाइप। ओके, इन स्क्वायर्स और rectangulars. So there is a something arrangement in these shapes. Okay, so the numbering arrangement or numbering positions are there. So we have to find out that relation with that particularly numbers with that respective positions. Okay, and that relations we have to carry out to find out the number which is perfectly replace on that particularly question mark, because in this one there is a one question mark present, and on that question mark we have to replace the correct any number which is available in option. So from the options we have to choose that one, so that logic we have to use. Okay, so for that one you must know the operations, means addition, subtraction, multiplication, divisions. Okay, even the mathematical relations in the numbering. Okay, with a something number, and that is after the addition, again that is multiplication, or we can say the subtraction, like this one. So there is a logic also we have to use. Okay, and most important, you must know the numbering from 1 to 10 or 1 to 100 or their relations. Okay, there are the n number of the questions from 1 to 100 numbers. Already we have covered that one in our another video, so please go through that one. After this one, there you must know the prime numbers from 1 to 100. Okay, these are the number 1 to 100. These numbers you must know. Okay, you already know, but the relation type you have to think about that one. We have to look at that one, how these numbers are arranged. Okay, so that relations must be know. Then their squares. Okay, multiplication tables from 1 to 30. Okay, even 1 to 30 and 30 to 30 also. Even there is a this yellow color line shows the squares. Okay, this one, this diagonal shows the squares of all the respective numbers. So please go through this one, this is very important. So up to the 30 everybody must know the squares. Okay, after this one everybody must know the prime numbers 1 to 100. Okay, how many prime numbers are there? There are the 25 prime numbers. So, and which are them, like that one. So green color shows here the prime numbers, so please go through that one. After this one, the twin prime numbers, this is very important. So which are the twin prime numbers and their pairs? Okay, that you must know. How many pairs are there? There are the 8 pairs, like this one. After this one, the triangular numbers from 1 to 100, how many are there? After that one, the square numbers 1 to 100, which are there? Okay, like this one. These are the very important tables, so I am sharing this one to you. So please go through this all the tables and find outing your correct answers. Okay, this is a very basic, so must be know, not only for the scholarship exam but after this one every exam you must know this one. Okay, आपको ये हमेशा लगने वाला ही है. Okay, तो चलिए दोस्तों कि देखते हैं हम क्या है एग्जैक्टली रिलेशन. तो कुछ एग्जांपल के थ्रू हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर होंगे. तो ध्यान से सुनिएगा. तो चलिए, क्वेश्चन है पहला. यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर्स में ग्रिड से 9 है, मतलब 3x3 का ग्रिड है. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है सेंटर में. ओके, तो अभी इसका रिलेशंस क्या है? तो इसका रिलेशंस बहुत ही सिंपल है. ओके, मतलब क्या है, जो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, इनका दोनों का एडिशन करने के बाद आ जाता है सेंटर वाला नंबर. ओके, तो 4 + 9 13, 8 + 7 15, तो 15 इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. सेम 3 + 6 9. ओके, बहुत सिंपल था, मगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह से अभी आगे आगे और हार्डनिंग क्वेश्चंस या तो हार्डनेस के जो भी हार्ड रहते हैं वो किस तरह से आ जाते हैं, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे झलक मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे 28 24, यहाँ पे ग्रिड में कुछ नंबर दिखा है. यहाँ पे रिलेशन क्या है? तो अब अगर आप प्रॉपरली कीनली देखेंगे तो ये सभी के सभी नंबर इन टर्म्स ऑफ द 4 है, मतलब 4 के मल्टीप्लिकेशन में. इसलिए मैंने कहा कि हमें टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज ओनली फॉर द 4 टेबल्स, वेरी वेरी इजी. ओके, बहुत छोटा है ना, मगर आगे चल के अगर बड़ा नंबर का आ गया, समझ लीजिए 17 नंबर का आ गया, 23 का आ गया, या तो 29 का आ गया, तो क्या करेंगे? इसीलिए हमें ये टेबल सभी के सभी इंपॉर्टेंस है. ओके, तो
फोर्थ का टेबल है 4 टू जा 4 3 जा 4 4 जा, देन 4 5 जा 4 6 जा 4 7 जा 4 8 जा, तो लाइक दिस वन 4 9 जा, तो यहाँ पे आ जाता है 36। ओके, बहुत इजी था, 1 मिनट के अंदर हमें सॉल्व करना बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे रिलेशन किस तरह से, बहुत दिमाग लगाने के बाद हमें पता चल गया कि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35, बहुत इजी है। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32, लाइक विद दिस वन। तो दीज आर द ऑपरेशंस। ओके, सो 3 9 जा, यहाँ पे आ जाता है 27, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सर्कुलरली यहाँ पे ग्रिड दिखा है, देखिए एक पिज्जा की तरह इसको कट कर दिया। ओके, अब जब आप पिज्जा लेके आएंगे तो आप भी देखेंगे जरा, एक पिज्जा आपका रहेगा ये क्वेश्चन वाला। ओके, तो इसको कितना नंबर से इसके ऊपर आएगा, तो क्या है रिलेशन, यहाँ पे कुछ सिंगल डिजिट है, यहाँ पे कुछ डबल डिजिट है। ओके, तो ये दिस हाफ इज समथिंग डिफरेंट। ओके, सो 5 5 जा 3 5 जा 6 5 जा, सो 4 5 जा 20। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो करेक्ट है। ओके, दैट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अभी चलिए ये दो हमें एग्जांपल दिए, इनका हमें कुछ लॉजिक फाइंड आउट करना, सेम लॉजिक हमें तीसरे को भी अप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे 3 लॉजिक थे अपने पास। ओके, हमने चौथे को अप्लाई कर दिया, तो सेम लॉजिक डिस्टर्ब नहीं करना, लॉजिक पहले अंडरस्टैंड करना है, और लॉजिक बाकी के हमें जो 2 या 3 जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं इसी में, ये एग्जाम्पल ही है ये दोनों। ओके, इसके ऊपर सेम लॉजिक हमें अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो अभी देखेंगे क्या है लॉजिक। इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखा, डिवीजन करके देखा, सब कुछ करके देखा, तो मैंने जब एडिशन करके देखा तो 14 आ गया, इसका भी एडिशन कर दिया तो यहाँ पे 19 आ गया। तो इसका भी हम एडिशंस करेंगे तो क्या आ जाता है, यहाँ पे एडिशंस करने के बाद आ जाता है 24, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। बहुत ईजी है। ओके, मगर सिर्फ एक बार लॉजिक फाइंड आउट होने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन से बहुत ईजी लगने लगेगा। ओके, जब तक आपका लॉजिक पता नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन बहुत हार्ड रहेगा। इसलिए हम कहते हैं बच्चों की क्वेश्चन बहुत हार्ड है मगर आंसर बहुत ईजी है। इसलिए हमारा अलग सा एक चैनल है जियो मैथ्स का, उसके ऊपर भी आप देखेंगे, होम स्क्रीन पे आप जाएंगे, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चंस हार्ड रहते हैं मगर आंसर्स बहुत ईजी रहते हैं। मगर जब तक हमें आंसर का लॉजिक समझ में नहीं आता तब तक तो क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा बड़ा। मगर जब लॉजिक समझ में आ जाता तो क्वेश्चन पूरा गायब हो जाता है वहां से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अभी यहाँ पे क्या रिलेशंस है, तो यहाँ पे कुछ तो रिलेशंस तो होना चाहिए ना। तो देखेंगे कि समझ लीजिए 7 + 5 किया तो 12 आ जाता, मतलब इन दोनों के एडिशन कर दिए तो ये आ जाता है 12, और 12 5 जा 60 आ जाता है। तो चलिए हम इन दोनों के एडिशन कर देते हैं, तो 6 + 4 10, सो 10 5 जा 50, तो इन दोनों की भी हम एडिशन करेंगे। 7 + 4 ये आ जाता है 11, 11 5 जा यहाँ पे आ जाता है 55, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्टली। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 5 करना, मगर अगल बगल मतलब लेफ्ट और राइट के दोनों के डिजिट की एडिशन करने के बाद जो नंबर आ जाता है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना 5 से। ओके, बहुत सिंपल था ये भी, जब तक देखते नहीं तब तक हार्ड है। अभी जस्ट ओवरलुक करेंगे तो बहुत हार्ड लग रहा है, मगर जब हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसका हमें पता चलेगा कि ये भी बहुत ही बहुत ईजी है। ओके, देखेंगे अभी 11 13 30 क्या है भाई इनमें रिलेशन, मगर बहुत सोचने के बाद पता चला कि ऑल आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को कहाँ पे अपने, तो यहाँ पे प्राइम नंबर से 11 से लेके स्टार्ट हो जाते हैं, 11 13 17 19 23 29 31 37। ओके, तो यही है सारे के सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे अरेंजमेंट। ओके, 11 13 17 19, तो इसके बाद आ जाता है 23, उसके बाद 29, तो 23 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ओके, बहुत ईजी है ना, अभी समझ में आ गया ना, बहुत इजी लग रहा है, मगर जब हमने शुरू में देखा तो हमें थोड़ा सा अलग लग रहा था। चलिए ये भी हम देखते हैं। अभी यहाँ पे तो जस्ट ओवर लुक में हमें देख रहा है कि यार ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी हम जरा इसका लॉजिक देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। तो देखेंगे कि 4 × 2 आ जाता है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते थे तो 4 × 2 आ जाता है 8, 8 का हमें स्क्वायर करेंगे तो आ जाता है 64। तो चलिए 3 × 1 3 आ जाता है, तो 3 का स्क्वायर आ जाता है 9, तो 2 × 5 ये आ जाता है 10, और 10 का स्क्वायर आ जाता है 100, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल बी रिप्लेस एट द क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, तो 5 × 2 10, 10 × 3 13, नो ये नहीं है। तो 5 + 2 7 + 3 10, इनका एडिशन आ जाता है 10, 10 × 3 ये आ जाता है 30। ओके, 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 × 3 आ जाता है 42। ओके, तो 6 + 4 10, 10 + 5 ये आ जाता है 15, 15 × 3 ये आ जाता है 45। ओके, तो 45 है अपने ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, तो इसका है आंसर ऑप्शन नंबर 1 45।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें। ओके, ये तो ये क्या है यहाँ पे, अभी देखेंगे, जस्ट रीड करेंगे या तो ओवरलुक करेंगे तो हमें थोड़ा सा अलग लग रहा है, मगर अभी सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि बहुत ईजी है। 1 का कितना है यहाँ पे, स्क्वायर कितना है यहाँ पे इसका, 1 का स्क्वायर है यहाँ पे 1, ओके, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। अभी पता चल गया, बहुत इजी है ना। ओके, इसी तरह से रहता है, ये बहुत इजी रहता है ग्रिड्स का, पजल्स का। ओके, एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया तो इसका कोई भी आंसर हार्ड नहीं है। तो चलिए लास्ट हम देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, ओके, तो चलिए सॉल्व करने के बाद आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। तो क्या रिलेशन है, रिलेशन बहुत इजी है। ये इसको मतलब जो लेफ्ट साइड का है इसे डिवाइड करना है इस नंबर से। ओके, तो अभी आपको पता चल गया 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। तो 7 मल्टीप्लाई इसी के नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसका स्क्वायर करना, तो ये आ जाता है 49। ओके, तो 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाता है 16। ओके, 80 डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाता है 8 का स्क्वायर आ जाता है 64, तो ये यहाँ पे कौन सा रहेगा 64, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। बहुत ईजी है ना, जब तक पढ़ते नहीं तब तक हमें बहुत हार्ड लगता है। तो दोस्तों हमारा दूसरा चैनल है जियो मैथ, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड, मगर जो आपको 10th स्टैंडर्ड के तक जो भी आपको पजल्स इंपॉर्टेंट लगेंगे वो उसमें हम दे रहे धीरे धीरे। ओके, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, और आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। अभी तक इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे से बहुत सारे एकेडमिक फिफ्थ से लेकर 10th तक आपके लिए वीडियो भी लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और आपका पढ़ाई चालू रखिए। ओके, थैंक यू।